Assalamualaikum, Adab, good greetings to all of you. Welcome to Sridhar Education Society. In last grammar class, we have studied two grammar that is similar to this grammar that we are going to study today. That was present perfect continuous tense. It means when the work is going on in present, when the work is going on in present, that is present continuous. But if starting time of the work is also given, that sentence will be converted into the present perfect continuous tense. If we talk about present and work is going on in present and the starting time of the work is also given, that will be jumped into the past present perfect continuous. And just similar, if we talk about past and work will be going on in past and the starting time of the work will be given, then that sentence will jump into the past perfect continuous tense. We have studied both, and the structure was the subject has been having in past, and after that ing form of the verb, object, since, for, and time. That time is mentioned in the sentence, means starting time of the work. Starting time of the work will be kept here, and the since and for will be kept here. And where since will be used and where for will be used, I have told you also some criteria, some point like period of time or counting of time or number of times. If in the place of these examples like 1 day, 2 weeks, 2 months, 3 years, like these numbers can be changed, these type of things will come, then we will use for. Days, number of days, number of weeks, number of months, number of years, number of minutes, hours, seconds, number of decades, number of centuries, these will come, then we will use also always for. And after that, if we get name of days, name of months, name of years, name of time of the days, morning, evening, noon, night, today, yesterday, the day before yesterday, tomorrow, the day after tomorrow, and these type of names of the time will come, then we will use since before that time. Okay. After that, today we are jumping into the future. Same thing will be here. If we will talk about future, and work will be going on, continuity of the work will be shown, that work will be continued, and after as well as starting time of the work, will be given, then that sentence will jump into the future perfect continuous. Before that, if this will not be mentioned, if this starting time of the work will not be mentioned, simply in future work will be going on, that sentence will lie in future continuous tense. And as well as if we will get starting time of the work in that sentence, just to be converted into future perfect continuous tense. Why we use this name for these type of sentences? Earlier we have also seen, and now in future perfect, we have used will have. Here we use will have. Subject will have been, and ing form of the verb because continuity of the work, plus object, other things that has been mentioned in the sentence, and the since and for, after that time. This will be the structure of the sentence that we will make now. Subject will have been, and ing form of the verb shall have been can be also used here, but I have told you that I will teach you shall, especially in another separate class. Then we will use shall. Till then, we have to use will have. Okay? चलिए, थोड़ा सा हिंदी में भी रिकैप करना जरूरी होता है, क्योंकि हो सकता है हर कोई रेगुलर क्लास ना देखा हो, तो उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है. जो रेगुलर क्लास देख रहे होंगे उसको
बेहतर तरीके से वो चीजें इंग्लिश भी समझ में आ रही होंगी, क्योंकि वो मैंने पढ़ा दिया है, लगभग मैं उसी को यूज करता हूँ। थोड़ी बहुत जो बाहर जाती हैं वो आपको बोलते टाइम इशारे से या फिर जो बात मैं कह रहा हूँ उसके कॉन्टेक्स्ट से आपको समझ में इतनी तो आ जाती होगी कि मैं किस बात से बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जो चीजें नहीं समझ आई आगे धीरे धीरे ग्रामर पर जब पहुंचेंगे तो वो चीजें और बेहतर तरीके से आपको समझ में आने लग जाएंगी। अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं, जिस तरीके से हमने पीछे की दो ग्रामर्स में हमने देखा, वोकैबुलरी को छोड़ करके पीछे की दो ग्रामर क्लासेस में हमने देखा कि अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं और काम चल रहा हो, वर्क इज गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है। और उसी के साथ में अगर काम शुरू होने का टाइम भी हम बता देते हैं, मेंशन कर देते हैं, तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जंप कर जाता है वो सेंटेंस। क्यों? क्योंकि हमारा जो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं हैज बीन, हैव बीन लगाते हैं। हैज हैव कहाँ का आपका परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का रहता है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट और काम चल रहा है इसलिए कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता था वो। और उसके बाद जब हम पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट में हम यहाँ पर हैड लगा देते थे। क्यों? पास्ट परफेक्ट में हम हैड लगाते हैं, इसलिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन लगा देते हैं और काम चल रहा है इसलिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग जाती है। तो हैड लगने की वजह से परफेक्ट नाम आ जाता है इसमें, ठीक है। पास्ट की बात की तो पास्ट में हैड लगा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नाम दिया था हमने। लेकिन अभी हम अगर फ्यूचर की बात करें, वही चीज फ्यूचर में हो और काम फ्यूचर में बात करें और काम चल रहा हो, वर्क इज गोइंग ऑन इन फ्यूचर, वर्क विल बी गोइंग ऑन इन फ्यूचर, और साथ में काम शुरू होने का टाइम भी दिया गया हो, स्टार्टिंग टाइम ऑफ द वर्क, काम कब शुरू हुआ उसका टाइम भी दिया गया हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट विल हैव बीन, विल हैव बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम। और शैल का यूज मैं जब सेपरेट क्लास में बताऊंगा उसके बाद आपको शैल का यूज करना है, तब तक आप यही यूज करते रहिए, विल हैव, ठीक है, विल हैव बीन यहाँ पर। चलिए, और आपका सिंस और फॉर, ये आपका टाइम जो हमने काम शुरू होने का टाइम जो दिया हो सेंटेंस में, उस टाइम के पहले हमें सिंस और फॉर लगाना होता। और सिंस और फॉर कहाँ लगाते हैं, कहाँ, दोनों में से ऑब्लिक का मतलब होता है या तो ये, दोनों एक साथ नहीं आना है, चाहे ये आएगा तो ये नहीं आएगा, ये आएगा तो ये नहीं आएगा। आप कहाँ पर कौन सा आएगा इसके लिए हमने यहाँ पर क्राइटेरिया दे रखा है, कुछ पॉइंट्स हमने लिखवाए आपको। अगर जो हमारा टाइम है वो पीरियड ऑफ टाइम है, यानी कि वो कुछ टाइम के बाद वो अपनी नंबर को बढ़ा सकता है, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, काउंटिंग ऑफ टाइम यानी कि उसको गिना जा सकता है। नंबर ऑफ टाइम्स यानी कि कितनी नंबर में टाइम है वो आपका, जैसे 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन, 2 हफ्ते 5 हफ्ते 6 हफ्ते, और 2 मंथ 5 मंथ 7 मंथ 3 ईयर, यानी कि इनके साथ में नंबर बताया गया हो और उनको गिनती में ला सकते हो तो उसको हम फॉर उसके पहले यूज करेंगे फॉर। और अगर नेम ऑफ टाइम हो जाए, पॉइंट ऑफ टाइम या फिक्स टाइम, तय समय, निश्चित समय, ठीक है, उसके लिए हम सिंस यूज करते हैं। क्या हो जाएगा उसमें, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, ये नेम ऑफ डेज हो जाएंगे। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल नेम ऑफ मंथ्स हो जाएंगे। 2024 2030 1947 1950 2017 2070, ठीक है, इस तरीके के जो भी सेंटेंस हमारे आएंगे वो सब के सब हमारे सिर्फ इन सबके जितने भी टाइम आएंगे इससे पहले हमारा सिंस लगेगा। मॉर्निंग, इवनिंग, नून, नाइट, टुडे, ये नेम ऑफ टाइम है, दिन के पहर के नाम है, सुबह दोपहर शाम रात, आज, बीता हुआ कल, बीता हुआ परसों, आने वाला कल, आने वाला परसों, ये सब आपके फिक्स नाम है, ठीक है। तो इनके लिए हम सिंस का यूज करेंगे। चलिए कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं, उससे आपको बेहतर समझ में आएगा। कल हम प्रधानमंत्री के आने का इंतजार कर रहे होंगे। ये आने का कर रहे होंगे। कल हम प्रधानमंत्री के आने का इंतजार कर रहे होंगे, इस सेंटेंस पे देखेंगे तो फ्यूचर की बात हो रही है, आगे के करेंगे। और रहा
रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यानी कि कंटिन्यूअस, उसका हमको चलने का इशारा मिल रहा है यहाँ से हमें, यानी कि कंटिन्यू है। और कल, यानी काम कब शुरू होगा, कल शुरू होगा, तो यानी कि शुरू होने का टाइम नहीं दिया गया, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। वी विल बी, हम यानी कि वी विल हैव बीन, वी विल हैव, वी विल हैव बीन वेटिंग, we will have been waiting for PM, Prime Minister, PM's arrival, आगमन, अराइवल है आगमन यानी कि आने का, PM's arrival since tomorrow, since tomorrow, tomorrow, कल से। हम प्रधानमंत्री, देखिए, कल अगर से नहीं लगाते ना तो खाली उसी दिन होता, लेकिन कल से अब कब तक आएंगे वो नहीं पता, लेकिन कल से यानी काम शुरू होने का टाइम हमने बता दिया यहाँ पर। वी विल हैव बीन वेटिंग फॉर पीएम अराइवल दिस टुमारो। पिताजी 2031 से पेंशन ले रहे होंगे, पेंशन ले रहे होंगे, होंगे, पिताजी 2031 से पेंशन ले रहे होंगे। फादर विल हैव बीन, फादर विल हैव बीन टेकिंग पेंशन, टेकिंग पेंशन कब से, 2031 से। नेम ऑफ ईयर, सिंस, सिंस 2031। मुन्ना 25 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा होगा, शिकायत आई स्कूल से, तो पता चला कि मुन्ना 25 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा होगा, जा रहा होगा। मुन्ना will not have been going to school 25 days, फिर लगेगा पर 25 days, 25 दिन, for counting of days, for 25 days।
लिख लिया होंगे इसको, पॉज करके लिख लीजिए, मैं रफ करके जो है अगले एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पर। सुबह से बारिश हो रही होगी। सुबह से बारिश हो रही होगी। सुबह से बारिश हो रही होगी। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट पता ही नहीं है, बारिश कौन कर रहा है नहीं पता। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने एक चीज मेंशन किया हुआ है जो अभी तक हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया था, इट। ठीक है, इट का इस्तेमाल हम स्पेशली एक क्लास में बताएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ा सा ठीक ठाक एग्जाम्पल मिला तो हमने कहा उसको लिख देते हैं। सुबह से बारिश हो रही होगी। इट विल हैव, जहां जहां पर आपका सब्जेक्ट ना मिले वहां पर इट हम लगाते हैं। ठीक है, कहाँ लगाते हैं, स्पेशल इसका यूज आपका पढ़ाया जाएगा। इट विल हैव बीन रेनी, इट विल हैव बीन रेनी सुबह से, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग। क्या आप 3 साल से चुनाव की तैयारी नहीं कर रहे होंगे। नहीं कर रहे होंगे। क्या आप 3 साल से चुनाव की तैयारी नहीं कर रहे होंगे। अब हमारा ये चीज आगे आ जाएगा। विल यू विल यू विल यू हैव बीन विल यू हैव बीन प्रिपेयरिंग, नहीं कर रहे हैं। विल यू नॉट हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शन, प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शन, इलेक्शन 3 years, 3 years, 3 साल, फॉर 3 years। इस तरीके के सेंटेंसेस जो आते हैं उसको हम ऐसे बनाते हैं। क्या आप मेरा इंतजार कर रहे होंगे। क्या आप 10 दिन से मेरा इंतजार कर रहे होंगे। विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 10 days। विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 10 days। जो भी टाइम हो आप टाइम लगा सकते हैं। ठीक है, क्या आप सुबह से पढ़ा रहे होंगे। विल यू हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। क्या आप सुबह से पढ़ा रहे होंगे। विल यू हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। पिताजी आपको सुबह से कॉल कर रहे होंगे। पिताजी आपको सुबह से कॉल कर रहे होंगे। फादर विल हैव बीन कॉलिंग यू सिंस मॉर्निंग। माँ आप पर गुस्सा कर रही होंगी। माँ 3 दिन से आप पर गुस्सा कर रही होंगी, आपने फोन नहीं किया उनको। मदर विल हैव बीन
गुस्सा करने क्या बोलेंगे, एग्री, विल हैव बीन एंग्री ऑन यू सिंस मॉर्निंग, या फिर जो टाइम हो फॉर 10 डेज ना, 10 दिनों से। तो इस तरीके के सेंटेंसेस आप इस फॉर्मेट से बना सकते हैं। ठीक है, रिवाइज कीजिएगा इसको, कोशिश कीजिएगा ये सारी चीजें आपको याद हो जाए, तैयार हो जाए, समझ में आ जाए कि हाँ कहाँ पर कौन सा लगता है, कहाँ पर किस लगता है, कहाँ पर फॉर लगता है। सेंटेंसेस में ज्यादातर गलतियां इस चीज में होती हैं। ठीक है, ये तीनों के लिए काम आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीनों टेंस में आपको ये काम आने वाला है। ठीक है, तो ये हमारी ग्रामर में आपकी जितने भी 12 टेंसेस हैं उनको मैंने पूरा करा दिया है। ये जस्ट अंग्रेजी का 5% हुआ है और भी बहुत सारी चीजें बची हुई है, वो सब हम पूरा कंप्लीट करेंगे और इंग्लिश में पारंगत होंगे, महारत हासिल करने वाले हम लोग। और अब मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा, बार बार मैं पीछे की क्लासेस में भी बोला हूँ कि न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। न्यूज़पेपर किसी भी लैंग्वेज के लिए, चाहे हिंदी आप सीख रहे हो तो हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए आपको, इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। तो मैं इंग्लिश अभी सीख रहे हैं हम लोग, तो इंग्लिश के लिए रिकमेंड करूंगा आपको बार बार। ठीक है, इंग्लिश का पेपर एक दिन का आप परचेज कर लीजिए, उसको आप एक दिन में पूरा पढ़ नहीं सकते हैं। एक न्यूज एक दिन में अगर आप लेकर के बैठेंगे तो भी बहुत है। ठीक है, उससे क्या होगा, जब आप ग्रामर यहाँ पढ़ रहे हैं उसको आप पढ़ते टाइम आपको पता चलेगा, अच्छा हाँ विल हैव हमने पढ़ा हुआ है, विल हैव हमने पढ़ा हुआ है, इज एम आर हमने पढ़ा हुआ है। बीच बीच में जहाँ आएगा आपको खुशी महसूस होगी, हाँ इसको तो मैंने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो वो चीजें आपकी रिवीजन होती जाएंगी, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको नहीं समझ में आएंगी अभी, तो उसको खाली रीडिंग करते आप आगे निकलते चले जाइए, उसको समझने की कोशिश भी मत कीजिए जब तक मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। जो चीज यहाँ समझा लिया हूँ उस चीज को आप वहां पर दिमाग लगाइए उस चीज पर, जो चीज नहीं समझे उसको आगे छोड़ते चले जाइए। ठीक है, चलिए करते रहिए।